Hello students, today I am going to introduce about the next topic of the chapter P block element. Now the next topic is elements of group 18 or zero group. So this is called as noble gases or inert gases. Okay. Now in the 18 group, helium 1s2, neon 2s2, 2p6, argon 3s2, 3p6, krypton 3d10, 4s2, 4p6, xenon 4d10, 5s2, 5p6, radon 5d10, 4f14, 6s2, 6p6. Now in this electronic configuration, except helium is stable, that is configuration 1s2, means s orbital is fully filled. But in case of neon to radon, its configuration is stable, means this form a stable noble gas configuration. Okay, because s orbital is fully filled and p orbital is also fully filled. Okay, now what is the reason of stability? स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है बेटा? बिकॉज इट दे आर हाईली स्टेबल बिकॉज इट विल फॉर्म अ स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके, बिकॉज s and p orbitals both are fully filled. Now next is existence. Due to complete electronic configuration, they are not capable of combining among themselves, so they are monoatomic. Okay. Now next is atomic radii. The atomic radii of noble gases is van der Waal radii. कौन सी रेडियाई होती है बेटा? van der Waal रेडियाई होती है. Because they don't form the covalent bond. ये कौन सी होती है? van der Waals होती है और ये कभी भी covalent bond form नहीं करते. Okay. So the van der Waal radii that is always greater than the covalent radii. What is the reason behind this? Why van der Waal radii is larger than covalent radii? Because due to the weak force of attraction. Due to weak force of attraction. Okay. Now the radii of noble gases that is larger than halogen. Halogen से ज़्यादा होती है and it will be increases down the group. देखो बेटा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं down the group, atomic radii increases. ओके, क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल्स है, के शेल्स, एल शेल्स, एम शेल्स, लाइक दिस. ओके, तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है. It means the distance from the outermost electrons and the nucleus that will be increases. तो ये increase होगा तो बेटा रेडियाई भी क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी. distance बढ़ेगा, it means रेडियाई भी बढ़ेगी. ओके, but force of attraction क्या हो जाएगी? weak हो जाएगी. ओके, now next is ionization energy. ionization energy. Ionization energy means the amount of energy required to break to lose the electrons. Okay, the amount of energy required to lose the electrons from the isolated gaseous atom. Okay, now ionization energy of noble gases that is very high. कैसी होती है बेटा? बहुत हाई होती है. तो it means क्यों होती है हाई? क्योंकि ड्यू टू द extra stability of completely filled orbital of completely filled electronic configuration. ओके, अब ये वाले हैं बेटा आपके पास all are fully filled. ठीक है, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ठीक है, मीन्स अ वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज आइसोलेटेड गैसियस एटम. ओके,
So ionization energy is very high due to the extra stability of completely filled electronic configuration. Okay. Now next is electron gain enthalpy. इसमें क्या बोलते हैं? Electron gain enthalpy. Okay. देखो इस केस में क्या है बेटा? Due to the stable completely filled electronic configuration, noble gases have no tendency to accept the extra electrons. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी इनकी नहीं है क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा स्टेबल है. ओके, सो दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. सो दे आर हाईली पॉजिटिव. They are highly positive, or you can say that zero electron affinity. Okay, yeah. Now next is melting point and boiling point. Okay, melting point and boiling point. Noble gases, they have low melting point and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? लॉ होता है. रीजन क्या है? ड्यू टू द वीक वैंडरवाल फोर्सेस. ड्यू टू वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस. ड्यू टू वीक वैंडरवाल फोर्सेस. ओके, बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. तो क्या होता है? इंक्रीज होता है बेटा. ड्यू टू increase the van der Waal forces. Due to increase the van der Waal forces. क्योंकि van der Waal forces क्या होती है? इंक्रीज होती है. ओके, दैट्स वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases down the group. Okay, now helium has lowest boiling point. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मीन्स वाटर में कितना डिजोल्व होता है. जो नोबल गैसेस होती हैं दैट आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. दीज आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. क्यों बेटा? ड्यू टू, रीजन इज ड्यू टू dipole induced dipole interaction. Okay, dipole induced dipole interaction होती है. ठीक है. सो वाटर बीइंग पोलर, वाटर पोलर है इसलिए दैट इंड्यूस द पोलराइजेशन इन द नोबल गैस एटम. ओके, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप solubility increases due to increase of polarizability. ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे solubility बढ़ती जाएगी क्योंकि polarizability increase हो जाएगी. ओके, now the next is chemical reactivity. chemical reactivity. देखो बेटा, noble gases are inert. इनर्ट होते हैं और नॉन रिएक्टिव. नोबल गैसेस आर इनर्ट एंड नॉन रिएक्टिव. ओके, सो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. देखो हम रीजन इसमें कई डाल सकते हैं बेटा. फर्स्ट रीजन ये डाल सकते हैं बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सेकेंड हम ये डाल सकते हैं बेटा बिकॉज दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. थर्ड हम ये डाल सकते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज ऑलमोस्ट इक्वल. ठीक है, नोबल गैसेस इज ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है बेटा या फिर हाईली पॉजिटिव होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है. सो ड्यू टू दीज थ्री रीजन्स द नोबल गैसेस आर ऑलमोस्ट इनर्ट और नॉन रिएक्टिव. ओके,
नाउ द नेक्स्ट इज एक साइंटिस्ट थे बेटा नील बार्टलेट। नील बार्टलेट द डिस्कवरी इसने नोबल गैसेस की कंपाउंड बनाने के लिए की थी। तो इन 1962 में क्या किया था, नील बार्टलेट ने ऑब्जर्व किया था कि ऑक्सीजन की रिएक्शन अगर हम किसी प्लैटिनम फ्लोराइड के साथ करते हैं देन इट विल फॉर्म O2 पॉजिटिव एंड PtF6 नेगेटिव। ओके, दिस इज द रेड कलर आयनिक कंपाउंड। So this compound is formed. Okay. So the molecular diameter of O2 and the radii of xenon fluoride that is very similar. तो इसने बताया कि जो O2 का डायमीटर है और xenon जो है फ्लोराइड है इसकी जो एटॉमिक रेडियई है ये xenon है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, सेम है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है और दोनों के अंदर सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, सिमिलर है। तो इट मीन्स उसने ये आइडिया स्ट्राइक किया उसके दिमाग में कि जो PtF6 है, PtF6 दैट ऑल्सो ऑक्सीडाइज द जीनोन, तो इस जीनोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इट मीन्स उसने फिर इसका कंपाउंड बनाया Xg प्लस PtF6 माइनस। ओके, ये येलो ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, दिस इज येलो ऑरेंज कलर कंपाउंड। ओके, तो इसमें उसने ये शो किया कि ये येलो ऑरेंज सॉलिड जो हमें यहाँ से ऑब्टेन हुआ है इट मीन्स जीनोन इज नॉट टोटली इनर्ट, टोटली इनर्ट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स ऑफ जीनोन। कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, नाउ XePtF6 this was the first real compound of any of the noble gas। ठीक है, ये फर्स्ट कंपाउंड था बेटा नोबल गैसेस का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जीनोन डाइफ्लोराइड XeF2। अब इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं बेटा। तो नाउ दिस इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ जीनॉन प्लस फ्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 1:2। इसको 1:2 में लेते हैं एंड दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड इट विल फॉर्म XeF2। ओके, नाउ दिस xenon fluoride that on hydrolysis with aqua solution and it will form the xenon plus HF plus O2। okay, this is 2 times, this is also 2 times, 2 times and this is how many hydrogen, 2 to 4, तो this is 4 times। okay, तो इसमें हम ये बना सकते हैं। now next is xenon tetrafluoride। okay, how it is prepared, xenon tetrafluoride that is formed by heating a mixture of xenon and fluorine, this is 2F2 in presence of a nickel and it will form XeF4। okay, now it is never synthesized in the pure form because its formation is, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो क्या बनाती है बेटा, XeF2 एंड XeF6 दोनों तरीके के कंपाउंड्स बनाती है, इसलिए प्योर फॉर्म में कभी भी सिंथेसाइज्ड नहीं होता। ओके, नाउ इसमें जो रेशो आती है 1:5 लेते हैं बेटा। ठीक है, इट फॉर्म XeF4 दैट फॉर्म अ हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड XeO3। जब इसको हम पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो इसकी जो रिएक्शन है बेटा वो देखो, जब XeF4 को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं देन इट विल फॉर्म xenon प्लस XeO3, ये एक एक्सप्लोसिव सॉलिड कंपाउंड होता है, देन HF देन O2। ओके, तो दिस विल बी बेटा हेयर xenon हम 6 लेंगे। ठीक है, तो हेयर 6 xenon इज हेयर, देन 4 and 2। okay, 4 or 2 6, then how many water molecules here, 12, 12 to the 24 or this is also 24। okay, and oxygen is 12, then 3 to the 6, 6 plus 6, 3 to the 6 also, so this is 12। okay, now it is soluble in
फ्लोरोएसिटिक एसिड, XeF4 कंपाउंड कहाँ सॉल्युबल होता है? फ्लोरोएसिटिक एसिड्स में सॉल्युबल है। नाउ द नेक्स्ट compound is XeF6. Okay, this is XeF6. XeF6 is formed by heating the xenon with the 3-fluorine 3F2 at 300 degrees Celsius. Then it will form XeF6. Okay, and the ratio is 1:20. Okay, now the hydrolysis of XeF6 with water. Now what is the reaction here beta? XeF6 plus water, then it will form XeOF4, and what will be formed here? H2F2, means 2HF भी बोल सकते हो बेटा इसको आप, ठीक है? तो this type of compound is formed. Okay, now these are the new compounds. This new compound XeOF4 that react with water, ये फिर से water के साथ react करता है and it will form XeO2F2, okay, plus 2HF, ये बनता है. Now this XeO2F2 react with water and it will form XeO3. ये क्या है? एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ठीक है, एक्सप्लोसिव नेचर का है, ठीक है. नाउ सेम इन दिस केस, ठीक है. आप इन रिएक्शंस को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा. अगर XeF6 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, देन इट विल फॉर्म अ XeOF4 plus 2HF. Okay, then XeF6 react with 2 molecules of water, then it will form XeO2F2 plus 4HF. Okay, now this XeF6 react with 3 molecules of water, then it will form XeO3 plus 6HF. Okay, so this will be formed. Now this hexafluoride that also undergo hydrolysis and it will form a xenon type compounds, ठीक है. तो ये क्या होता है आपके, ये इस XeO3 एक्सप्लोसिव जो सॉलिड है ये बनाता है. नाउ अब हम देखते हैं इसकी शेप ऑफ xenon कंपाउंड्स. देखो बेटा, पहले XeF2 की देखते हैं. हाउ विल यू ड्रॉ द शेप? देखो, फर्स्ट जीनोन के जो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6 ये होती है. तो आप इसको बना सकते हो. ये आपका जो है ग्राउंड स्टेट है, ये आपके जो है p के 6 ऑर्बिटल्स यहाँ है, एंड देन 5d 1 2 3 4 5, ठीक है. ये 2 है बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, अब आपको एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है बेटा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जो है कहाँ जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये आपके 2 आ जाएंगे, इधर भी 2 आ जाएंगे, और ये आपके यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो इट विल शो अ sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो देखो दिस इज xenon and this will form this type of geometry that are having 1 2 3 lone pair and 2 bond pair. ओके, तो बेटा ये आपका एक लॉन पेयर बन जाएगा, यहाँ पे एक लॉन पेयर आपका यहाँ बन जाएगा, एक लॉन पेयर आपका यहाँ बन जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म फ्लोरीन एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म फ्लोरीन. सो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल इज हेयर, सो दिस शेप इज लीनियर शेप. कैसी होती है बेटा? लीनियर एंड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल. ओके, नाउ in this XeF2 compounds sp3 hybridization takes place, which give the molecules and that will give the trigonal bipyramidal structure. But
due to presence of 3 lone pairs of electrons, its shape is distorted and its shape be linear. Okay. Now next is shape of XeF4. XeF4 का कैसे बताओगे बेटा? देखो सेम है, इसमें आपको क्या करना है, सेम आप इसके वो बनाओगे, पहले आपके 5s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर दैट 5p एंड आफ्टर दैट 5d. ओके, ये आपका 5p है, ये आपका 5d है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4. दिस इलेक्ट्रॉन्स गोज टू दिस एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स गोज टू दिस d ऑर्बिटल. ओके, देन व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन बेटा? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी. देन व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कंपाउंड? ये आपका जीनोन है बेटा, दिस वन. ये फ्लोरीन है, दिस इज ऑल्सो फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. एंड अब आपको आपके पास हाउ मेनी लॉन पेयर्स? 1 and 2. 2 लॉन पेयर्स आर प्रेजेंट हियर एंड 4 जो आपके हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. मीन्स 4 लॉन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर. सो दिस इज द लॉन पेयर. It means this will form the square planar geometry. Square planar. Okay, this will be formed. Now next is XeF6. XeF6. इस केस में क्या है बेटा? ये आपका 5s ऑर्बिटल है, दिस इज 5p. 5p ऑर्बिटल्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा? sp3, sp3d3 ये आ जाएगा आपका. ठीक है, देन व्हाट विल बी द शेप और ज्योमेट्री? दिस इज xenon और ये आपका जो है बेटा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा वैसे तो ये. ठीक है, ये बन जाएगा. ओके, ये आपका फ्लोरीन है, दिस इज ऑल्सो फ्लोरीन, दिस इज ऑल्सो फ्लोरीन, ये भी आपका है फ्लोरीन और ये आपका है फ्लोरीन. एंड ये आपका एक क्या बनेगा? यहाँ पे एक लॉन पेयर है ड्यू टू दिस. ये आपका लॉन पेयर आ जाएगा बेटा यहाँ पे. ठीक है, और बाकी आपके बॉन्ड पेयर है. तो मैं यहाँ पे एक लॉन पेयर बना रही हूँ डिस्टोर्टेड. ठीक है, और ये आपका एक बन जाएगा. इसको हम डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं. ठीक है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप. ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ओके, नाउ xenon oxides and xenon oxyfluorides. देखो बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? xenon oxides and xenon oxyfluoride. xenon form the 2 oxides. xenon हमारे 2 ऑक्साइड बनाता है बेटा. एक तो XeO3 बनता है, एक XeO4 बनता है. ठीक है, अब XeO3 कैसे बनता है? देखो, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो XeF4, तो फर्स्ट हम लेते हैं XeO3. XeF4 की हाइड्रोलिसिस करते हैं, मीन्स वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं. देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर? देन इट विल फॉर्म xenon प्लस XeO3 प्लस H2F2 प्लस O2. ओके, ये बनाता है. अब यहाँ xenon 6 है बेटा, दिस इज 4 एंड दिस इज 2. ओके, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन्स दिस इज 12 एंड दिस इज हैविंग 3. ओके, मीन्स दिस XeF6 दैट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है. देन इट विल फॉर्म XeO3 प्लस 3H2F2. ओके, ये बनता है. नाउ xenon टेट्राफ्लोराइड, अब इसको टेट्रा ऑक्साइड्स. अब XeO4 कैसे बनाए? देखो बेटा, इसकी रिएक्शन हम बेरियम
पर जिंथेट आयन की तरफ से करते हैं, जैसे Ba2 XeO6, इट रिएक्ट विद द H2SO4, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, देन इट विल फॉर्म अ BaSO4, ये BaSO4 बनाता है, प्लस XeO4 प्लस वाटर. How many hydrogen here? 4, then it is multiplied by 2. Barium is 2, then it is also multiplied by 2. Okay, ये आपका बेटा प्रिपरेशन है XeO4 की. Okay, now what are the properties of XeO3? XeO3 की कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये एक कलरलेस है, कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है. ठीक है, एक्सप्लोसिव नेचर का है, एक्सप्लोसिव सॉलिड है. ओके, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है ये. ठीक है, ये XeO3 जब किसी भी अल्कली बेस के साथ रिएक्ट करता है, देन इट विल फॉर्म अ हाइड्रोजन जेंथेट आयन. दिस इज HXeO4 नेगेटिव. ठीक है, हाइड्रोजन जेंथेट आयन बनाता है. दिस हाइड्रोजन जेंथेट it react with the OH negative ions, then it will form XeO6 4 negative plus xenon plus water. Okay, then this will be formed. Okay, now pergenthate, that solution is yellow color and it is a powerful oxidizing agent. Okay, बट द XeO4 जो आपका XeO4 होता है, दैट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू XeO3. ओके, तो ये कम स्टेबल होता है बेटा. ऐसा क्यों होता है? XeO3 ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं XeO3 को, सॉरी XeO4 को, देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर? xenon प्लस ऑक्सीजन. तो जीनॉन और ऑक्सीजन हमें यहाँ पे मिलती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स. ऑक्सीफ्लोराइड्स. ठीक है, देखो बेटा इस केस में क्या है, फर्स्ट हमारे जो होते कंपाउंड्स वो है XeOF2. इसका नाम क्या है? xenon ऑक्सीडाइफ्लोराइड. सेकेंड क्या है? xenon डाईऑक्सीडाइफ्लोराइड. ओके, तीसरा नाम क्या है? xenon ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड. ओके, तो ये कंपाउंड्स हमें मिलते हैं. ये क्या होते हैं? xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स के कंपाउंड्स हैं. ठीक है बेटा. ओके, draw the structures of these xenon oxyfluorides. This is your homework and learn and write notes. Thank you.